Now it is lecture number 6 on the conduction system of the heart, and this will be the last lecture on the components of the heart. Now the last component of the conduction system of heart is Purkinje fibers. Purkinje fibers. Now Purkinje fibers are simply these are simply the nodal tissues, specialized formed of the specialized cardiomyocytes. These Purkinje fibers, these are basically formed of specialized cardiomyocytes. Those specialized cardiomyocytes have the property of conduction, have the property of excitability and automaticity. Purkinje fiber. Now Purkinje fibers, as we know that these are the specialized cells. These are the specialized group of the cells, and they form a fiber-like structures called as the Purkinje fibers. Now this Purkinje fiber, it arises from the bundle of His. It arises from bundle of His. It gets originated from the bundle of His. It arises from bundle of His. तो ये निकलते हैं बंडल ऑफ हिस से ही. तो जब बंडल ऑफ हिस है उसमें जब ब्रांच निकलती है, लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट साइड बंडल ब्रांच, तो उनमें फिर फर्दर जो लेफ्ट बंडल ब्रांच जो है वो फर्दर डिवाइड होती है इनटू स्मॉल फाइबर लाइक branch. Those small fiber like or the filament like branches are called as simply called as the Purkinje fibers. That means Purkinje fibers arise होते हैं from the bundle of His से ही ये arise होते हैं. और ये लोकेट कहाँ पर होते हैं? ये लोकेट होते हैं, अगर Purkinje fibers की मैं लोकेशन की बात करूं, they are located inside a space in the endocardium. Endocardium, you know, the innermost जो लेयर होती है, मसल लेयर, जो मसल लेयर होती है हार्ट की, innermost muscle layer of the heart, that is called as the endocardium. Myocardium is the middle layer, and the innermost layer of the heart, that is called as the endocardium. तो उसी एंडोकार्डियम में वहां पर स्पेस होती है, एंडोकार्डियम, beneath the endocardium, वहां पर एक स्पेस होती है called as the sub endocardium space और सब एंडोकार्डियल स्पेस. तो उसी स्पेस में ये प्रेजेंट होते हैं. कौन से? Purkinje fibers. These Purkinje fibers are simply, if I'm talking about the location, तो अगर मैं लोकेशन की बात करूं, पहले मैं सिंपली बोलूंगा लोकेशन कहां पर होते हैं ये. These are basically found in the endocardium. ये एंडोकार्डियम में पाए जाते हैं, एंडोकार्डियम ऑफ हार्ट, एंडोकार्डियम ऑफ हार्ट. लेकिन एंडोकार्डियम में कहां पर? एंडोकार्डियम में beneath the endocardium. They are found beneath the endocardium. Beneath the endocardium एक स्पेस होती है, that is called as the sub endocardinal space, और simply the sub endocardium भी हम इसको बोलते हैं, sub endocardinal space. तो सब एंडोकार्डियल स्पेस जो है ये एंडोकार्डियम के नीचे ही होती है. सब एंडोकार्डियल स्पेस होती है वहां पर एक स्पेस होती है जिसे हम सब एंडोकार्डियल स्पेस कहते हैं. तो इसी स्पेस में कौन होते हैं? Purkinje fibers. Purkinje fibers. तो Purkinje fibers are simply found in the endocardium of the heart, but they are basically found beneath the endocardium. And beneath the endocardium there is a space, and that space is called as subendocardial space or the subendocardium. That region is called as the subendocardium, and the space in that region is called as the subendocardial space. And in the subendocardial space there are the finer fiber-like filaments are found, and those are called as the Purkinje fibers. और Purkinje fibers में जो cells होती है,
they are mostly larger. The Purkinje fibers, it is made up of the specialized cardiomyocytes. But those cardiomyocytes which are found in the Purkinje fiber, जो cardiomyocytes found होती है Purkinje fibers में, वो usually large होती है, मोस्टली वो लार्ज होती है दैन ऑल अदर जो नॉर्मल कार्डियोमायोसाइट्स हैं उनसे ज्यादा बड़ी होती हैं परकंजी फाइबर्स की सेल्स. Purkinje fibers, that means the cardiomyocytes, are the cells which form the are the specialized cells which form the Purkinje fibers. The specialized cells are much larger than other normal cells. तो इसमें जो cells होती हैं वो larger होती है. Cells are larger. इसमें cells larger होती है than other normal cardiomyocytes. जो अदर नॉर्मल कार्डियोमायोसाइट्स हैं तो उनसे थोड़ी बड़ी सेल्स पाई जाती हैं किसमें, परकंजी फाइबर्स में. और ये जो सेल्स होती हैं ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं. इनमें प्रॉपर्टी ऑफ द एक्साइटेबिलिटी, प्रॉपर्टी ऑफ द ऑटोमेटिसिटी एंड प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्शन इनमें होती है. नाउ जो ये परकंजी फाइबर्स होते हैं, इन जो सेल्स इसमें होती है परकंजी फाइबर्स में जो सेल्स होती हैं, ये सेल्स में क्या होता है, इनमें बहुत ज्यादा क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया. लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज आर फाउंड इन लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो सबसे ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया परकंजी फाइबर्स की स्पेशलाइज्ड सेल्स. जो परकंजी फाइबर है, इट्स अ नोडल टिश्यू फॉर्म्ड बाय स्पेशलाइज्ड कार्डियक सेल्स. तो जो लार्जर होती है देन अदर नॉर्मल कार्डियोमायोसाइट्स. तो ये जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है परकंजी फाइबर्स में, तो इनमें सबसे पहला पॉइंट है, दे कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. इनमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होता है. दूसरी चीज इनमें क्या होती है, इनके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ग्लाइकोजन पाया जाता है. इन सेल्स में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ग्लाइकोजन भी पाया जाता है, जिससे ये heavily स्टेन होती है. अगर स्टेनिंग हम करेंगे तो दे गेट heavily stained because of the presence of the glycogen near the nucleus of these cells, परकंजी फाइबर्स की सेल्स में. और इनमें होते हैं फीवर मायोफाइब्रल्स. तो जो मायोफाइब्रल्स होते हैं, जो मसल सेल्स, अगर आपने पढ़ी होगी तो मसल सेल्स में आपने पढ़ा होगा मायोफाइब्रल्स जो एक्टिन और मायोसिन जो कंट्रैक्शन कराते हैं मसल्स की, those filaments are called as the myofibrils. contractile fibers उसमें होते हैं myofibrils. तो इसमें बहुत कम myofibrils होते हैं. और एक और चीज जो परकंजी फाइबर्स के बारे में है, पहले मैं यहाँ पर हार्ट की डायग्राम थोड़ी सी बना दूं. यहाँ पर दिस हार्ट, आई विल ड्रा इट क्विकली. This is heart. I have drawn it roughly. And rough diagrams, it is good. Rough diagrams, we just need only a rough diagram. Okay, now this is heart. Now this is the human heart, and here now this is like this.
Okay, this is heart. Now this is the right auricle, this is the left auricle, this is the right ventricle, and this is the left ventricle. Okay, now another thing about the Purkinje fibers is Purkinje fibers में और क्या है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा था कि इसमें बंडल ऑफ हिस्से होते हैं, these are the bundle of his, और ये फिर इनमें स्मॉलर फिलमेंट्स निकलते हैं यहाँ से, तो कॉल्ड एज द फैसिकुलर, जो लेफ्ट ब्रांच है बंडल ब्रांच, उसमें ये स्मॉल स्मॉल ब्रांच निकलती है, तो ये स्मॉल फिलामेंट जब बनते हैं तो दे आर बेसिकली कॉल्ड एज द Purkinje फाइबर्स, और इनको हम फैसिकुलर ब्रांचिंग भी बोलते हैं. तो लास्ट में जब ये एपेक्स तक पहुंचती है, या अप टू द एपेक्स ऑफ द हार्ट, तो यहाँ फिर ज़्यादा फाइनर ब्रांचेस होती हैं इसकी, तो ये है, दीज आर कॉल्ड एज Purkinje फाइबर्स. तो ये हो गए Purkinje फाइबर्स. तो दीज आर Purkinje फाइबर्स. Purkinje फाइबर्स, तो इनको हम Purkinje फाइबर्स कहते हैं. नाउ ये जो Purkinje फाइबर्स हैं, इनकी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, दे आर मोस्टली क्विक. ये बहुत ही ज़्यादा क्विकली ये रिसीव करते हैं स्टिमुलस को, दैट इम्पल्स को, ये बहुत ज़्यादा क्विकली इसको रिसीव भी करते हैं, और उसके बाद इसको ट्रांसपोर्ट भी बहुत ज़्यादा क्विकली करते हैं. तो ये क्विकेस्ट होते हैं. ये बहुत ज़्यादा क्विक होते हैं, जो ये इम्पल्स जो कंडक्ट ये करते हैं, ये बहुत ज़्यादा क्विकली इम्पल्स कंडक्ट करते हैं. तो दे क्विकली कंडक्ट्स इम्पल्स. सबसे क्विकेस्ट जो कंडक्ट इम्पल्स करता है इन नोडल टिश्यूज, दैट इज द Purkinje फाइबर्स. क्विकली कंडक्ट्स इम्पल्स, ये क्विकली इम्पल्स कंडक्ट करता है. और ये जो Purkinje फाइबर्स है, Purkinje फाइबर्स जो दैट मीन्स जो कंट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स, और द कंट्रैक्शन जो होती है इन वेंट्रिकल्स की, इट इज मेनली ड्यू टू द बंडल ऑफ हिस एंड द Purkinje फाइबर्स. क्योंकि ये जल्दी से यहाँ वेंट्रिकल्स में ये सिग्नल पहुंचाता है, इम्पल्स पहुंचाता है, जिससे वेंट्रिकल्स जल्दी से कंट्रैक्ट होते हैं. और सबसे ज़्यादा क्विकेस्ट कंडक्शन Purkinje fibers करते हैं. And another point regarding the Purkinje fibers is these Purkinje fibers was discovered by a scientist जिसका नाम था Ivan Elistea Purkinje. Ivan Elistea Purkinje. अगर मैं पूरा नाम लिख दूं तो Jan Ivan Elistea Purkinje is the scientist who discovered these Purkinje fibers inside the heart, inside the endocardium of the heart. Okay, so this is all about the conduction system, about the nodal tissues. So this makes the end of these basically the nodal tissues. Now we will take about how the SA node generates impulse. अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो लेक्चर है इस कंडक्शन सिस्टम में, दैट इज दैट लेक्चर, दैट हाउ द SA node is able to, हाउ दैट मेक्स इम्पल्स, वो करंट कैसे जनरेट करता है. एंड देयर आर सम कंसेप्ट्स इन दैट टॉपिक, एंड the question comes from that.